Hello students, good morning to all. So in today's lecture, we are moving ahead towards our last topic under the chapter retirement of a partner. This is death of a partner. This topic is very much similar to retirement of a partner. The only difference is that in under death of a partner, you have to calculate the ongoing year's profit and his share. So we are starting today's lecture. When a death of a partner occurs, his legal nominees, representatives or heirs will ask the money which is due by the business to him. So now we will look what are the various adjustments which have to be made at the time of death of a partner, or what are the various amount which will have to provide to the legal representatives. The first amount is that one is standing to his credit of the capital, amount of capital that is standing to his credit. Second thing you have to provide them is his share of goodwill. Third one, these all are the amounts which have to be credited in his account. Third amount is profit on revaluation. Profits on revaluation. Next, part or share of reserves which have been made by all the partners. The most important thing which is different from the previous lectures is this point: share of profits of ongoing year. In which his death has occurred, कि जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है उस साल के प्रॉफिट्स आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडर द डेथ ऑफ अ पार्टनर. Next thing we may have to provide is interest on capital, if any, given in deed. These are all are the amount which have to be credited in his capital account. There are some amount also which have to be debited. Debit amounts are like if there is anything debit balance of capital account or current account. Loss on revaluation. Third one is part of or share of accumulated losses. If there are any accumulated losses in the firm, he has to share that in his respective share. If there are losses in ongoing year, but next is interest on drawings. If provided by deed, also drawings. One more important point is there: if the firm has reimbursed him any kind of loan, we will deduct that amount of loan from his capital. So we will debit loan taken by him from firm. Likewise, I have already told you under the case of retirement of partner, his legal representative are also entitled to get 6% interest in case of outstanding amount. If firm is unable to pay the amount at the time of death, or they are delaying the payment, their legal representative or legal heirs are entitled to get 6% interest for the delayed period, or they can also ask for the profit share which have been earned from his capital, like under the section 37 we have done in the retirement. So
these all treatment are same. Likewise, we are doing in the retirement case. I am explaining you in this lecture treatment of or share of profit of ongoing year with imaginary examples. First example and cases. It has been given to you that calculate his share of profit for the ongoing year on the basis. There are two bases which may be given to you. On the basis of last year's profit or average basis of some previous years. Likewise, you have done in the valuation of goodwill. Or the second basis they may use on the basis of turnover or sales of previous year or profits. So first case is on the basis of last year's profit or previous year's profit. सपोज आपको गिवन है कि लास्ट ईयर के बेस पे आपने प्रॉफिट उसके कैलकुलेट करने हैं. देखिए डेथ है एक नेचुरल है, उसको कभी नहीं पता कि कभी भी हो सकती है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड. सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट ईयर इज क्लोज्ड ऑन 31st March and ABC were partners 3-1. C dies, C की डेथ हो जाती है. डेट मस्ट बी गिवन ऑन 30th June सपोज. इट मीन्स C has lived in the business for 3 months, April, May and June. इसी 3 महीने के लिए बिजनेस में रहा है. तो उसके जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट होंगे, क्योंकि ऑनगोइंग ईयर अभी प्रॉफिट्स नहीं आए हैं, दे हैव टू estimate the amount of profit which had been earned in these 3 months. तो उसके लिए वो क्या करेंगे? They will use a basis from above two. कोई भी बेसिस यूज कर सकते हैं, वो आपको it has been provided you in the question. So I'm using first one. Like they have decided to calculate the profit, his share of profit on the basis of last 4 years average profit. आपको last 4 years के average given है 1,50,000, 10,000 losses, and last year is 80,000. So अगर इसकी एवरेज निकालें 150, 230, 220 by 4, it will be 55,000. इस एवरेज से हमें क्या पता लगे कि अगर पूरा साल बिजनेस चलता, if business runs for the whole year, the amount of profit that they will earn is 55,000. कि अगर पूरा साल वो बिजनेस करते तो 55,000 के करीब वो प्रॉफिट्स अर्न कर सकते थे. अब हमें we have to find out the share of C. So 55,000, it is for full year, but C has remained for 3 months. So 3 by 12, this will calculate the profit of that particular period under which C has remained in the business. So now we will multiply it by C share, that is 1 by 6. This will C's share of profit. कि सी के शेयर के प्रॉफिट ये बन रहे हैं हमारे 3 मंथ्स के लिए. अब इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इसके ट्रीटमेंट के दो आगे केसेस हैं. इफ when profits are distributed, there are two cases. Profits के if new ratio not changes
not given or changes if new ratio changes. First case is if new partner does not change their ratio, like in this case ABC dies, ABC are partner, C dies, and A and B are continuing to share profits in 3:2. New ratio is not changed. So in this case you will have to pass just one single entry. That entry will be, in this case the entry will be profit and loss suspense account to C's capital account. Amount will be that we have calculated 2291. देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों? क्योंकि अभी पूरा साल नहीं हुआ है. प्रॉफिट्स क्या थे? सस्पेंस में थे. दिस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द न्यू बैलेंस शीट इन डेबिट साइड, and it will be debited to partners capital account when they want to write off this account. So second case is if new ratio changes. अगर new ratio change हो जाती, कुछ और रेशियो हो जाती तो क्या होता, वो मैं एक और क्वेश्चन के द्वारा समझा रहा हूं आपको. Like in this case same case is there. ABC are partners in equal ratio and you have been said कि you have to find out profits on the last year's profit basis, कि लास्ट ईयर में जितने प्रॉफिट्स थे वही हमने इस साल अर्न करने थे, और लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स आपको गिवन है 60,000. लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है 60,000. इन दैट केस C again dies and the new ratio is already given between A and B is 3:2. न्यू रेशियो इज गिवन बिटवीन ए एंड बी इज 3:2 कि ए और बी के बीच में नई रेशियो 3:2 है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट गेन, बिकॉज इन दैट केस यू हैव टू मेक ट्रीटमेंट एज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर. डिसीज्ड partner. So gaining partners, we will calculate their gain of sacrifice 3/5 minus 1/3, 2/5 minus 1/3. It will be 9 minus 5, 15, 6 minus 5, 1/15, 4/15. Ratio is 4:1. They are gaining in 4:1. And now C share of profits will be, look, total profits for the whole year was 60,000 in the last year. It means we have assumed that कि इस साल भी हम 60,000 प्रॉफिट्स ही अर्न करने वाले हैं. हम 60,000 रुपया इस साल अर्न करेंगे. वो टोटल फुल ईयर का था. सी कितने महीने रहा है? 3 months. So 60,000 into 3/12 into C share 1/3. So that will be 5,000. It means फर्म ओज 5,000 टू सी फॉर दिस ईयर्स प्रॉफिट. फर्म ने 5,000 रुपया सी को देना है इस ईयर के प्रॉफिट्स के लिए. 5,000 को अब कंपनसेट कौन करेंगे? क्योंकि न्यू रेशियो क्या हो गई है? चेंज हो गई है. अगर न्यू रेशियो चेंज ना होती, यू हैव टू पास सिंगल जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू सीज कैपिटल. बट इन दिस केस न्यू रेशियो हैज बीन चेंज, सो वी हैव कैलकुलेटेड गेन एंड सैक्रिफाइस. दे आर गेनिंग इन 4:1. तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी? A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital account. 5,000 they are gaining in 4:1. I am distributing it and 4:1. 4,000, 1,000. Adjustment of profits. प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट हमने की है. अब इसी केस में फर्दर मैं आपको एक और सब केस बता रहा हूं कि जहां पे आपको टाइम पीरियड प्रॉपर नहीं गिवन होता. लाइक यहां पे जून में डेथ लिखा दी हमने, 3 months पूरे हुए हैं, लेकिन डेथ है एक नेचुरल थिंग है, उसमें कोई हमें पता नहीं कि पूरे ही होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा कि वो सिंपली कैलकुलेट हो जाए.
एक क्वेश्चन में आपको अगर डेथ की डेट गिवन है, इसी केस में सपोज डेट ऑफ डेथ इज गिवन 12 जून, ईयर एंडेड वाज 31 मार्च। अगर आपको डेट 12 जून गिवन है, इट मींस in April there are 30 days, in May there are 31 days, 61, and 12 June 73 days are total. It means he has remained in the business for 73 days. अब in this case कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 12 जून के केस में 60,000 ही सपोज लास्ट ईयर के प्रॉफिट थे, 60,000 into, अब वो 73 डेज के लिए रहा है फुल ईयर में, 73 upon total days in a year 365 into his share 1/3, so that will be 5 plus, now his share of profits will be 4,000. ये वो केस था जहां पे आपको डेज में उसका लिविंग टाइम दिया हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं अभी तक जो पढ़ाया हमने इस लेक्चर में, कि डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में कुछ एडजस्टमेंट्स दैट विल बी सेम एज इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, एक्सेप्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑनगोइंग ईयर, जो ईयर चल रहा था उस केस में जो प्रॉफिट्स अर्न करने थे उसका शेयर कैसे कैलकुलेट करना। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिस गिवन होंगे, वो बेसिस दो हो सकते हैं, या तो फर्स्ट बेसिस की लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे, या पिछले कुछ सालों की एवरेज के बेस पे हमें प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये मेथड था। सेकंड मेथड मैंने अभी आपको करवाया नहीं है सेकंड बेस। इस मेथड में दो मैंने आगे फर्दर सब केस बनाए। इफ न्यू रेशियो इज गिवन, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन सिंपली यू हैव टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नोट। इसका रीजन भी बताता हूं। रीजन क्या है कि वो पुरानी रेशियो में ही शेयर कर रहे हैं, एंट्री फिर भी गेनिंग टू डिसीज्ड ही बनी है, लेकिन डिफरेंस क्या रहा कि उन्होंने P&L को डेबिट में रख लिया, ओल्ड रेशियो ही है उनकी, कोई गेन सैक्रिफाइस नहीं किया। जब भी वो राइट ऑफ करेंगे तो किस रेशियो में होगा? वो ओल्ड में ही होगा। सो एंट्री फिर भी वही बन रही है कि गेनिंग टू डिसीज, लेकिन क्योंकि आपके बुक्स में ये ट्रीटमेंट गिवन है तो हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। एंड इफ न्यू रेशियो चेंजेस देन द ट्रीटमेंट इज गेनिंग टू डिसीज पार्टनर। सो ये हमने एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन सॉल्व करके दिखा दी मैंने। नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स सेकंड केस on the basis of turnover or sales of the last period. Like I am taking an imaginary example. Suppose in the last year you have been provided that in last year firm's sales were rupees 2 lakh and their profits were rupees 30,000 in the last year. This data is related to last year, that sales are given rupees 2 lakh and profits were rupees 30,000, and you have been also provided with the information that from this year, from the beginning of this year, beginning till the date of death, till date of death, sales are rupees 80,000. Same ABC are partners. In 3 to 1 C dice. Date is given 30th June. Look, you have been provided with the information of the last year, that in the last year your sales were rupees 2 lakh and your profits were rupees 30,000. In this year, from the beginning of the year, from 1st April till the date of death, that is 30th June, स्टार्टिंग से लेके जब डेथ हुई है उस डेट तक के आपको सेल्स गिवन है कि सेल्स 80,000 थी, एंड वन मोर लाइन विल बी देयर दैट प्रॉफिट्स विल अक्रू एट द सेम रेट ऑन द टर्नओवर दैट वाज इन द लास्ट ईयर, कि प्रॉफिट्स उसी रेट पे होंगे जिस रेट पे लास्ट ईयर हुए थे। अब रेट कैसे पता लगेगा? सिंपली परसेंटेज। लाइक अगर सिंपली ऑब्जर्व करें हम यहाँ पे सेल्स पे 2 लाख की सेल करने पे 30,000 प्रॉफिट हो रहे हैं,
It means 15%. Some students may find it hard to find. तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 30,000 upon 2 lakh into 100. These are 15%. कि 15% प्रॉफिट का रेट था. दिस इज द रेट ऑफ लास्ट ईयर. उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर का रेट ही इस साल अप्रूव रहे. सो अब देखिए 3 मंथ्स की सेल दी हुई है. यहां पे बच्चे कई बार गलती करते हैं. 3 मंथ्स की सेल गिवन है 80,000. अब 80,000 पे मीन्स 15% प्रॉफिट होना था. सो द प्रॉफिट्स आर 12,000. ये पूरी फार्म के प्रॉफिट है सिर्फ 3 महीने के लिए. अब पूरे साल के लिए नहीं है कि आपको 3/12 करना पड़ेगा. 3/12 नहीं करना क्योंकि सेल्स ही आपको 3 मंथ्स की गिवन थी. 12,000 इनटू हिज शेयर. सी शेयर वॉज 1/6. C share was 1/6. It means 2,000. So the journal entry will be as the new ratio has not been changed. Profit and loss suspense account debit. Profit and loss suspense account debit to C's capital. Amount will be 2,000. If there were change in the ratio, you have to firstly find out the gaining ratio, and then the entry will be gaining partner capital account debit to deceased partner's capital account. So this was the treatment which have to be done. Now I am sharing with you one more important thing कि आपको कई बार मंथ्स कैसे कैलकुलेट करने पड़ते हैं. किन ट्रीटमेंट में आपको मंथ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, किन में नहीं. देखिए कैपिटल है, कैपिटल आपको जितनी गिवन है उतनी ही देनी पड़ेगी, उसमें कभी मंथ से कैलकुलेट नहीं होगा. गुडविल क्योंकि सारी लाइफ टाइम में कमाई गई थी, इन दैट केस यू विल ऑल्सो नॉट कैलकुलेट विद द मंथ्स. गुडविल का शेयर उसको खुल जाएगा चाहे उसने 2 दिन लगाए हैं बिजनेस. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इट विल ऑल्सो बी करेक्टेड इन फुल. नो कैलकुलेशन ऑफ मंथ्स विल बी देयर. पार्ट ऑफ शेयर्स और रिजर्व ये भी फुल जाएंगे, इसमें कभी मंथ से कैलकुलेशन नहीं होगी. शेयर ऑफ प्रॉफिट ये मैंने आपकी डिटेल में बताया, इसमें मंथ से कैलकुलेशन होती है क्योंकि पूरे साल वो नहीं रहा. जितना टाइम पीरियड रहा है सिर्फ उतने टाइम पीरियड के प्रॉफिट्स उसको दिए जाएंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दिस केस देयर विल आल्सो कैलकुलेशन ऑफ मंथ्स कि कितने महीने रहा उस उतने महीने का ही उसे इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे. एंड डेबिट अमाउंट्स में सेम वही चीजें हैं जो ऊपर मैंने बताई हैं, सेम वही ट्रीटमेंट है. आपको जो डेथ ऑफ पार्टनर है ये थोड़ा इजी रहेगा रिटायरमेंट से. रीजन बीइंग कि इसमें ज्यादातर कैपिटल अकाउंट सिर्फ उसी पार्टनर का बनेगा जिसकी डेथ हुई है. ओनली डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी देयर इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. एंड ऑल द ट्रीटमेंट्स आर सेम एक्सेप्ट दिस ट्रीटमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ऑनगोइंग ईयर कि इस साल का प्रॉफिट्स क्या है. 2 उसके बेसिस हैं. फर्दर 2 मेथड्स हैं. बेसिस टर्नओवर बेसिस भी हो सकता है या फिर लास्ट ईयर की एवरेज या प्रीवियस ईयर की एवरेज टाइम पीरियड के बेस पे भी हो सकता है, या कोई और बेसिस भी दे सकते हैं जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आप ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. एंड एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कई बार बच्चों को मुश्किल आती है उसमें कि इन द बैलेंस शीट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में बैलेंस शीट आपको गिवन होगी. डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होगा इस ईयर का, और आपको बोला होगा कि पिछले 4 सालों की एवरेज से आपने इस ईयर के प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं जो ऑनगोइंग ईयर है. यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट 4 इयर्स एवरेज. अब 4 सालों की एवरेज आपको चाहिए. नीचे आपको 3 इयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे. जो 4th ईयर के प्रॉफिट है वो आपने फिर बैलेंस शीट से लेने हैं क्योंकि बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है. तो 4 सालों के प्रॉफिट फिर उनकी एवरेज निकालनी है और फिर यही ट्रीटमेंट आपको करनी है. सो आज के लेक्चर में हमने किया डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में प्रॉफिट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है. आई होप कि सभी ने ध्यान से सुना होगा और सभी को समझ में आ गया होगा. विद दिस थैंक यू, साइनिंग ऑफ.